मैं तुम्हें याद करता हूँ, बहुत बेचैन रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ, काश की लौट आओ बाबा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। My dear friends, I am here to give a speech on Father's Day. बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश रहती है। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे, वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। वालिद दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। वालिद चाहे कितना ही बुरा हो, घर का सबसे मजबूत सितून होता है। वालिद का सख्त अंदाज और माँ का नर्म लहजा हमारे मुआशरे में घर के माहौल को मुताहर व मुतज़न रखता है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप के साथ हसन सलूक करना जायज़ से बढ़ के है। बाप एक जिम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। बाप एक दरख्त के मानिंद है, दरख्त खुद जलता है मगर दूसरों को साया देता है। बाप की शफकत और दुआओं की हद्दत खामोश समुंदर के मानिंद है। बाप की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है, इसलिए अपने वालिद की खिदमत करो ताकि दुनिया में भी और आखिरत में भी बाकमाल हो सके। Vice Principal Sir and other staff members, my dear brothers and sisters, first of all a very good afternoon to all of you. Let me introduce myself, Mahrouza Tariq, student of 9th class. Today I want to tell a topic about Father's Day. While growing up we watch stories and cartoons of superheroes, and the father is a symbol of strength that binds the entire family together. A father works day and night tirelessly to support the whole family economically and morally. Whenever we are stuck in a problem, the first person we remember is our father. Father is a provider element of the society and stands as a pillar for the family, on whom we can rely. So to respect all the fathers around the world and their efforts, we can celebrate Father's Day on 21st June year worldwide. It is celebrated all around India with pomp and glory. It is a day for a very personalized celebration. Nowadays, people are always engaged with their busy schedules and may not be able to express love and support to their fathers frequently. That's why we utilize Father's Day to appreciate our fathers for their extreme contribution. Good afternoon to all. I introduce myself. My name is Ansan Kutos. I speak that God has given us and we can't do that. Yes, it is time that we should have lies her life. We in a family to keep us always happy and healthy for our happiness. Mostly he uses to hide his emotions, even though he is not getting whatever he needs. He will make sure that his children are getting everything that they need. We know that how much they are sacrificing for their family, how much efforts they are putting in each single second. Still do not have any complaints that we call it as love and care. He always guides us in every decision of our life and show us his respected principal man, other staff member, my dear brothers and sisters. First of all, a very good afternoon to all of you. I am here to give a speech on Father's Day. Father's Day is celebrated on 3rd Sunday in June. This year it will be celebrated on Sunday, June 1922. This day is completely dedicated to all the fathers worldwide. Father's Day is held on various dates across the world, and different regions maintain their own tradition of honoring fatherhood. In the United States, Father's Day was founded by Sondra Smart Dodd. They celebrated on the 3rd Sunday of June for the first time in 1910. On Father's Day, giving them special present aggression or spending the entire day with them. Fathers portray us in good and bad times and lead us in the correct direction. He will always encourage you and look after all of your needs. Fathers are the pillars of a family who keep the family together and As you know that we are gathered here for what? Father's Day celebration. Every single student does not want that. That is the value of father. Value of father. Who is father? Father कौन है? हमारी जिंदगी में फादर का रोल है। हम इसलिए कलेक्ट करना कि हमें अपने पिता की, अपने बाप की हमें कदर हो, हमें समझ आए कि फादर क्या है। फादर को अगर हम समझने पे आएंगे या उसका किरदार हमारी जिंदगी में क्या है, तो शायद मेरे हिसाब से हमें दुनिया के खजाने तलाश करने पड़ेंगे। उसको समझने के लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि अगर माँ की कदमों के तले जन्नत है तो फिर
फादर जो है जन्नत का दरवाजा है। अगर आपको जन्नत कमानी है, अगर आपको वाकई अपनी ज़िंदगी दुनिया में भी अच्छी बनानी है और आखिरत भी अच्छी बनानी है, तो आपको अपने दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखना है, दोनों पेरेंट्स का आपने मानना है, दोनों पेरेंट्स की आपने कदर करनी है। आपको जो उनके प्रति आपका सलूक, आपका तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। आपने कभी उनकी नाफरमानी नहीं करनी। जिस बच्चे के फादर नहीं होते उससे ज़्यादा पूछो कि मेरी फादर ने कितनी बड़ी उसकी नहीं करनी। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे फादर हमें चलना सिखाते हैं। हमारे न जाने कितनी कोशिशों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया था हमें भी खुद मालूम होता है। कई बार हमारे फादर खुद भूखा रहते हैं और हमें खिलाते हैं। हमें अच्छी तालीम देने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा उनको यही सिला होना चाहिए, उनके मेहनत का हमें यही फल देना चाहिए कि हमें दिल लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए और हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहिए ताकि हमारे फादर को हम पर फख्र हो, हम पे नाज करें। ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती अगर आपका फादर आपके कंधे पे हाथ के शाबाशी दे रहे किसी काम का, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लिहाजा मेरा आप सबसे यही मैं आपको सबक दूंगा कि कोशिश करें अपने माँ बाप को खुश रखने की, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करें, अपनी माँ का कहना माने, अपने वालिद का कहना माने। माता पिता जो होते हैं ये ईश्वर ने हमें जो है, या खुदा ने हमें जो है, भगवान ने हमें जो दिए हैं एक नियामत की तरह। हम इन्हीं की गोद में खेल के बड़े होते हैं और हमें इनको समझना चाहिए। बस इतना याद रखो कि अगर जन्नत हासिल करनी है, अगर अपनी दुनिया भी अच्छी करनी है और मरने के बाद वो जो दूसरा लोक है, वो जो दूसरी दुनिया है जहाँ हमें जाना है, तो वो भी अगर अच्छा करना है तो हमें अपने पेरेंट्स को खुश करना। जिंदगी में भी कामयाबी का एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो मेहनत तो करनी है लेकिन अपने पेरेंट्स को कभी नाराज नहीं करना। समझ आई सबको? सबके दिमाग में बैठा नहीं। दूसरा मेरा मकसद आपके सामने आने का यही है कि फ्राइडे के दिन एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था क्लास 7 और क्लास 9 के दरमियान, जिसमें आपके पास सेकंड थर्ड विनर जो है मैं अनाउंस करने वाला हूँ। छोटा, लेकिन आप जो आपके मन में आता है तो वो मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। और ये कंपल्सरी क्लास 5th ऑनवर्ड है, 5th से 10th तक सभी बच्चों को बनाना है। क्लास 5th में बच्चे जो है एक दो ग्रुप में बना सकते हैं। क्लास 10th इंडिविजुअल हर एक बच्चा मॉडल प्रेजेंट करेगा एंड 9, 8, 7 सबका इंडिविजुअल है और 6 भी इंडिविजुअल है। क्लास 5th के लिए एक ड्राइव दी गई है जो ग्रुप्स में अपने मॉडल बना सकते हैं। कम से कम 2 बच्चे ज़्यादा 3 तक भी चल सकता है, उससे ज़्यादा भी आप लोगों के सारी क्लास में एक ही मॉडल यहाँ पे प्रिपेयर करें।
go to school.